Everyone. I think everyone is comfortable in English. Yes, sir. No issue. Okay. Uh, I welcome on behalf of IFG to everyone to this BG means biomass वार्ता हम जिसको कहेंगे. I think most of the people also join from field, so better I should take some time in Hindi also. So, yeah, I think I got request from someone Hindi. ओके. सो आई थिंक हिंदी इंग्लिश में दोनों कंटिन्यू करता हूँ. तो आज के बीजीए वार्ता में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आईएफजी की तरफ से. बेसिकली आईएफजी हैज स्टार्टेड इन 2014 टू प्रमोट ग्रीन एनर्जी in India, and it started with associating with all the industry partner from all green energy industry, right from solar, wind, biomass, biofuel, and in bioenergy we are associated with all bioenergy segment, right from biomass densification to ethanol, bio 2G ethanol industries. I am audible? हाँ जी Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. Okay. Okay, because I'm getting message. So Anamika, keep track if somebody is not able to get the voice. Maybe he has to rejoin again. So today, on behalf of BGAF, that is basically biomass forum, biomass densification forum we started for biomass densification industry in within IFG, so that whatever the issues and possibilities, opportunities are there with biomass densification can be discussed, and what are the policy issues and what are the issues that can be taken up with government as a association. So that's why we started a separate forum for biomass densification under this BGAF. And today we are here to discuss basically discussion on the SBI scheme or funding or the finance scheme for the biofuel projects from SBI as a funding agency. And for that, we have very esteemed guest today from SBI, Sri Ravi Kaushal. He's AGM from SBI, and he's looking for this funding activities for biofuel projects within SBI. And we also have our national coordinator for BGAF, Sri Aman Patra, as a moderator for this session. So I welcome our chairperson of this forum, Sri Colonel Rohit ji, in this today's Varta. It's a monthly series for discussing the various issues related to biomass densification and biomass aggregation industry. And I hope there are many ground people also has joined from right from briquette, pellet, aggregator, and everyone has issue how to get funding, because aggregation or densification definitely needs day-to-day working capital as well as the capex for machinery and everything. So I think there is very much critical component in bioenergy segment to establish this biomass supply chain in backward, so that all industry depending on biomass should thrive in the country. I now hand over mic to Aman Kwatra ji, our today's moderator for this session. Aman Kwatra. नमस्कार सभी को. धन्यवाद संदीप जी. अनामिका जी, I hope I am audible enough. Completely. Sandeep ji, thank you for kind words and introducing BGF to the participants. I think and I would like to welcome each and every participant, ताकि आप लोगों ने टाइम निकाला है. किसी भी एंटरप्रेन्योर का, किसी भी प्रोजेक्ट का एक सबसे बड़ा जो पार्ट होता है इशू का, वो फंडिंग है, फाइनेंस है. आपका कितना भी लुक्रेटिव प्रोजेक्ट हो, विदाउट प्रॉपर फाइनेंस it's always a difficult task, and you sometimes you don't plan properly for your
capital requirement as well as the working capital requirement. So, I would like to introduce our speaker for the day, Shri Ravi Kaushalji, who is the Assistant General Manager, SBI Consultancy Services. Shri Ravi Kaushalji joined SBI as probationary officer and served various assignments of the bank for the last 24 years. Presently, he is working as Assistant General Manager of Consultancy Services Department of SBI. He is engaged in conducting techno-economical viability studies for various SME projects pertaining to conventional engineering as well as renewable energy. He is conducting entrepreneur development programs and imparting specialized industry-specific trainings to the credit officers of the bank. He is also providing guidance and counseling to entrepreneurs under SME Facilitation Center. रवि जी से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर फाइनेंस एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है हमारी इंडस्ट्री में। उम्मीद करता हूँ इस मीटिंग में काफ़ी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में या इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाह रहे हैं, और हमने तकरीबन हमारे पास 250 प्लस लोगों ने इस वेबिनार के लिए रजिस्टर किया है, और सभी के जो सुझाव थे, सभी के जो एक आशाएं थी, उसको हमने गो थ्रू किया हमारी टीम ने, और उसके लिए हमारे कुछ पॉइंट्स हैं. द फ्लो ऑफ द वेबिनार विल बी, आई विल टेक 2 minutes टू इंट्रोड्यूस बीजीएफ, देन आई विल हैंड ओवर the session to Ravi ji, so that he can make presentation and present how SBI, which is the most, मतलब कहते हैं सबसे भारत का सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ा बैंक है, how they can actually help us to gain access to finance. What are the various schemes for SBI as well as the central government schemes regarding the funding. Then we'll take up the questions which have been put up us to in the registration form for 10 minutes, और उसके बाद 10 से 15 मिनट हम जो भी आपकी क्वेश्चंस हो, आप प्लीज उस क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में डाल दीजिए. हम उसमें से जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वेबिनार वी विल रिक्वेस्ट रवि जी फॉर हिज गाइडेंस. ठीक है, तो जस्ट आई विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस बीजीएफ फर्स्ट. Is my presentation visible? Yes, it is visible. Yeah. So बीजीएफ के पीछे का एक जो ऑब्जेक्टिव था कि इंडस्ट्री को रेलेवेंट प्लेटफॉर्म्स पे आवाज देना, क्योंकि हम देख रहे थे कि बाकी सभी जो भी रिन्यूएबल एनर्जी की इंडस्ट्रीज हैं वो संगठित होती हैं, तो हमने फिर आईएफजी के बैनर तले बीजीएफ का एक संगठित रूप दिया, ताकि हम इंडस्ट्री की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं करंट और फ्यूचर के हिसाब से उसको रेलेवेंट प्लेटफॉर्म्स पे उसको उठा सकें, और साथ में जो भी उसके जो समस्याएं हैं उसको हल करने की तरफ बढ़ सकें. इसका एक पार्ट है कॉन्फ्रेंसेस और डायलॉग्स को वेरियस स्टेक होल्डर्स में करना. ये फोटो हमारे लास्ट आईबीट एक्सपो की है. कर्नल रोहित देव जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं, ही हैज मॉडरेटेड दिस सेशन एंड has actually engaged the stakeholders from different industry, from the manufacturer point of view to the supply chain companies to the end consumer. हमारा एक ऑब्जेक्टिव बीजीएफ में ये भी है कि जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं, जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ हम मिलें, अपनी इंडस्ट्री की बात को उनके आगे रखें, और उसको रखने के बाद जो भी इंडस्ट्री के लिए बेस्ट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एक डायलॉग करके पॉलिसी के अंदर पॉलिसी एडवोकेसी करके उससे हम इंडस्ट्री का बेनिफिट करवा सकें. ये हमारी कुछ रिसेंट विजिट्स हैं. हमारी टीम खट्टर साहब से मिली, जो मिनिस्टर ऑफ पावर हैं, श्रीपद नायक जी जो मिनिस्टर ऑफ एमएनआरई हैं, एज वेल एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द एमएनआरई. देन आवर टीम इज द पार्ट ऑफ द स्टेक होल्डर कंसल्टेशन फॉर बायोमास ब्रिकेटिंग एंड पैलेटिंग for the MNRE, as well as अभी recently we have visited to meet the new mission director for Samarth mission at his office. इसके बाद हम लोगों ने जो आज हम बीजीएफ वार्ता कर रहे हैं, एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो मंथली बेसिस हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ. अमन जी, हाँ जी, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों रखिए, बिकॉज देयर सम पीपल
unable to understand Hindi. श्योर। तो हमने सर वार्ता जो है वो एक बातचीत होती रही, क्योंकि जब भी किसी चीज का हल निकालना है तो कम्युनिकेशन हमेशा दो साइड से होता है। इंडस्ट्री की अपनी डिमांड्स हैं, जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं उनके अपने व्यू पॉइंट है, उसको एक मंच पे लाके, ताकि एक नॉलेज एनहेंसमेंट भी हो और जो भी इश्यूज इंडस्ट्री के सामने है उसको उसका एक हल निकाला जा सके। तो मैं चाहूंगा कि आप सब जो इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं या इस इंडस्ट्री में जुड़ना चाह रहे हैं, वो सभी लोग हमारे साथ जुड़ें बीजीएफ के अंदर, ताकि हम अपने संगठन को और मजबूत कर सकें और एक आवाज इंडस्ट्री की, उसके चैलेंजेस की, उसकी रिक्वायरमेंट्स की, उसको हम रेलेवेंट प्लेटफॉर्म्स पे उठा सकें। आज का वेबिनार भी इसी इसी मकसद से हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। रवि जी, मैं चाहूंगा कि आप अपना जो एक्सपीरियंस है आपका, जो आज का टॉपिक है, उसको करते हुए कि कैसे एसबीआई के को हम काफ़ी लोग अप्रोच कर सकते हैं, कैसे जो एक फाइनेंस को लेकर जो एक इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, एक्सपेक्टेशन है, उसको कैसे मीट किया जा सकता है, और आपका व्यू पॉइंट क्या है। क्योंकि काफ़ी ऐसे क्वेश्चन है कि हम लोग को चाहते हैं कि हमें लोन मिले, कोलेटरल मिले, लेकिन आप एक पॉलिसी के तहत काम करते हैं। उस पॉलिसी के तहत उस चीज़ के लिए उस चीज के लिए आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए नए एंटरप्रेन्योर्स को या एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स को। नाउ द फ्लोर इज फॉर रवि जी, प्लीज सर। आप यू वांट टू शेयर प्रेजेंटेशन, काइंडली शेयर। थैंक यू अमन जी। एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, तो काफ़ी कम समय मेरे ख्याल से दो स्कीम के बारे में मैं बताना चाहूँगा। एक तो जैसा मुझे मालूम हुआ कि एक तो बायोमास पैलेट के बारे में, पैलेट एंड ब्रिकेट्स वो, और दूसरा जो है कंप्रेस बायोगैस। तो स्कीम जो है वो फंडिंग और फाइनेंसिंग की बहुत छोटी होती है, लेकिन उसका क्या उद्देश्य है, व्हाट इज द पर्पस फॉर दैट, उसका क्या बैकग्राउंड है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो किस तरह से वो मार्केट डेवलप हुई है, और एंटरप्रेन्योर या जो भी लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो क्यों उसमें इन्वेस्ट करें, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा कि एक कोट भी है कि कभी किसी का वर्तमान आपको समझना है तो उसका इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। यू वांट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एज वेल। तो सबसे पहले मैं 15 मिनट में बताऊंगा। पहले मैं बायोमास पैलेट और ब्रिकेट के बारे में बात करूंगा, और उसके बाद कंप्रेस बायोगैस की स्कीम के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद जो क्वेश्चन या क्वेरीज हैं उसके बारे में, उसमें हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो स्टार्टिंग विद बायोमास पैलेट और ब्रिकेट, जैसे आप सब जानते ही हैं कि जो प्रॉब्लम है वो शुरू हुई थी हमारे एनसीआर दिल्ली में, कि नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है उस समय जब पंजाब के अंदर पराली, जिसे राइस स्ट्रॉ भी बोला जाता है, उसको जब जलता है तो वहाँ पे बहुत ही कंजेशन हो जाता है, उसका धुआं उड़ के दिल्ली के ऊपर छा जाता है, एनसीआर पे पूरा इनफैक्ट। तो उसको दूर करने के लिए इट वाज स्टार्टेड दैट कि हम क्या करें कि हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वो पराली जो है वो लोग किसान जलाते हैं, बिकॉज उनके पास कोई चारा नहीं है उसको हटाने के लिए। तो ये कोशिश की गई कि अगर वो किसान जो है उसको जलाने की बजाय किसी दूसरे अल्टरनेटिव जिसमें उनकी भी इनकम हो जाए, इस सोच को लेके सरकार ने इस चीज लेकर आगे बढ़ी। तो क्या हुआ कि उसके बाद में बायोमास पैलेट इंडस्ट्री जो है उसके बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया। अब इसको कहाँ पे इसको यूज करें, ऑब्वियसली जब चीज़ों को बनाना बड़ा आसान है, लेकिन उसको कंज्यूम करना और बेचना, दैट इज द अनदर वेरी डिफिकल्ट टास्क। उसके लिए फिर एनटीपीसी का प्लांट आइडेंटिफाई किया गया। जैसे एनटीपीसी दादरी वाज सेलेक्टेड। नॉर्मली पावर प्लांट जो होता है, थर्मल पावर प्लांट होता है, जब हम सब इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटा जहाँ से मिलती है, जिसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा थर्मल पावर प्लांट जो है वो कोयला जला रहा है। तो ये सोचा गया कि अगर उसके अंदर 5% हम बायोमास की मिक्सिंग कर दें, बिकॉज वो सारे पावर प्लांट जो हैं उनके बॉयलर जो है वो डिजाइन हुए हैं कोयले के ऊपर में, उसके अंदर अगर आप बायोमास जिसके अंदर सिलिका है, सल्फर है या दूसरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, तो वो उसकी बॉयलर ट्यूब को डैमेज कर सकते हैं। तो इसीलिए पायलट शुरू हुआ 2016 में कि भाई वेदर हमारे जो थर्मल पावर प्लांट हैं ये बायोमास को एब्जॉर्ब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उसके बाद 2016, 17, 18 तक ये चीज़ें चली। देन अल्टीमेटली 19 के अंदर में, 2018 के लास्ट में या स्टार्टिंग में सक्सेसफुली ये माना गया कि 5% तक हम इसको मिक्स कर सकते हैं थर्मल पावर प्लांट के अंदर में। और उसके बाद एनटीपीसी वाज इंटरेस्टेड फॉर दिस टास्क। 2020 के अंदर में इवेंचुअली कहते हैं चीज़ों से मैं भी जुड़ा। हमारे पास एक प्रपोजल आया था उस समय, ये लॉकडाउन से मैं बता रहा हूँ, लॉकडाउन 23 मार्च 2020 को हुआ। उससे 10-12 दिन पहले ही हमारे पास में एक प्रपोजल आया जिसके अंदर
100 टीपीडी का प्लांट जो है कोई लगाने वाला था। तो क्योंकि मैं डील कर रहा था इसीलिए मैं एनटीपीसी के ऑफिसर से भी जाके मिला उनसे कि भाई इसमें जाने कि भाई ये है क्या चीज़। तब काफ़ी सारी चीज़ें आई, तब मिशन समर्थ जो है उसके बारे में मालूम पड़ा कि भाई दे आर वर्किंग ऑन दैट। तो अल्टीमेटली क्या है कि बायोमास पैलेट जो है उसमें क्या किया जाता है कि पराली हो या राइस स्ट्रॉ हो, उसको कंप्रेस करके आप उसको पेंसिल के बराबर जो है कंप्रेस कर देते हैं। यही चीज़ को हमारे जो थर्मल पावर प्लांट है, एनटीपीसी के एज ऑन डेट 20 थर्मल पावर प्लांट हैं, और अगर उसमें कोयले का जितना कंजम्पशन है उसके हिसाब से हर प्लांट को करीब 1000 टन पर डेली की आवश्यकता होती है। इसका मतलब सिर्फ हम एनटीपीसी को ही लें अगर, तो 20,000 टन पर डे का मार्केट जो है वो बायोमास पैलेट का है। इसके अंदर अलग अलग चीज़ें भी आती हैं। तो मैं घटनाक्रम बता रहा था, फिर हम मिशन समर्थ से जुड़े। मिशन समर्थ के अंदर अलग अलग हमारे पब्लिक सेक्टर के एग्जीक्यूटिव्स के लेके मिशन बनाया मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, और ये कोशिश करी कि हम इसको किस तरीके से पुश कर सकें, क्योंकि चीज़ें थी 2018 से चल रही थी लेकिन उतनी स्पीड से नहीं चल रही थी। एंड इवेंचुअली मिशन समर्थ ने भी ऑब्वियसली देन वी आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन अ वेरी स्मॉल मैनर. I prepared a bankable project report for biomass pallet and briquette, and it was circulated among all the public sector and private sector banks कि भाई अगर आप अपना प्लांट लगाना चाहते हैं तो क्या मशीन होनी चाहिए, क्या आपको एरिया चाहिए ज़मीन का, किससे आपको टारगेट करेंगे। तो वो जो बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, एंड उसके बाद अलग अलग वेरियस मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेज में समर्थ और हम लोग जुड़े रहे और हम जिनने इसको प्रोपेगेट किया। तो एज ऑन डेट जो है अब ये चीज़ उस समय जैसे मैं बात करूं कि अगर एनटीपीसी के सिर्फ प्लांट हैं तो 20,000 टन का हमारा मार्केट था। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो है जितने भी अभी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट हैं उस सब में एक्सटेंड हो गया है, और बड़े एग्रेसिवली गवर्नमेंट ने इस पे काम किया। तो आज की डेट में हम देखें अगर, तो कम से कम 1 लाख टन पर डे इसका ये मार्केट है आप लोगों के लिए, तो जो कि बहुत अट्रैक्टिव मार्केट हो जाता है। अब आते हैं कि अब इस चीज़ में कितने लोग जुड़े। अगर हम देखें तो कम से कम 500 प्लांट्स ऐसे हैं, छोटे प्लांट्स जो इस पे अभी काम कर रहे हैं, जो बायोमास पैलेट अभी बना रहे हैं। 500 में भी काफ़ी सारे जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, और मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज करीब 10,000 टन पर डे के करीब जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है। इसका मतलब अभी भी जो डेफिसिट है वो करीब 90,000 टन पर डे का है, और देयर इज अ लॉट्स ऑफ, का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसा मार्केट है जो आगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये जो है ये बैकग्राउंड है कि वाई वी शुड कंसीडर दिस, ये उसका इतिहास था, और ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें अगर मैं कहूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें कैपिटल कॉस्ट जो है वो बहुत कम है। अगर आप कम से कम 40 से 60 टीपीडी का प्लांट अगर आप सोच रहे हैं तो कम 2 या 2.5 करोड़ के अंदर में वो आपका लग जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है इसके अंदर, ऑब्वियसली इसी के अंदर ही नहीं, जैसे बायो एनर्जी की जो बात हो रही है, बायो एनर्जी में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो उसका रॉ मटेरियल का होता है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और उसका प्राइस। और जिसने इन दोनों चीज़ों को अगर कंट्रोल कर लिया, इसका मतलब वो जितना भी चाहे वो कंफर्टेबली उसको चला सकता है, ही कैन रीप बेनिफिट्स लाइक एनीथिंग। नाउ कमिंग टू द पॉलिसी, इसके लिए अब स्कीम का आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे बैंक के अंदर कोई पर्टिकुलर स्कीम नहीं था। तो हमने अपने कॉर्पोरेट सेंटर से रिक्वेस्ट किया, तो हमारा 2021 में हमारी बायोफ्यूल की पॉलिसी आई, जिसके अंदर में इस स्कीम को कवर किया गया कि कोई भी अगर बायोमास पैलेट का प्लांट लगाना चाहता है अगर, तो उसकी फाइनेंसिंग उसके लिए अवेलेबल है, बशर्ते उसका टाई अप होना चाहिए कि रॉ मटेरियल वो सोर्सिंग पक्की होनी चाहिए कि कहाँ से ले रहा है। बिकॉज ये बड़ा ही, कोई भी बायोमास हम ले बहुत ही लाइट डेंसिटी का होता है। अगर आप ये सोचें कि मैंने प्लांट यहाँ से लगा लिया और उसकी प्रोक्योरमेंट आप करेंगे 300 या 400 किलोमीटर दूर से, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप उसमें वो प्रॉफिट नहीं कमा सकते जितना आप सोच रहे हैं। उसी तरीके से सेकेंडली इसको बेचना भी बड़ा चैलेंजिंग है। बेचने के लिए जैसे जो बेचने को तो कोई भी हो जाता है, लेकिन जो आपको प्राइस दे, अच्छा प्राइस दे, उसके लिए अगर मान लीजिए आप जो है आपका जो लोकेशन है वो आपका किसी पावर प्लांट के पास होना चाहिए या किसी इंडस्ट्री के पास होना चाहिए जो उसको यूज करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये हमारी स्कीम में इसको शामिल किया गया। जैसे मैंने बताया कैपिटल कॉस्ट इसका काफ़ी कम है, 2 से 3 करोड़, या ये मैंने 60 टीपीडी के प्लांट की बात करी। इसमें मार्जिन जो था वो मार्जिन 30% रखा गया। जैसे मान लीजिए आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अगर 100 रुपया है तो 30% आपका मार्जिन होना चाहिए, 70 रुपये जो है देगा। हम अगर बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें 10% से लेकर 14%। इसमें क्या है कि हम लोग क्रेडिट, बैंक के अंदर क्या है कि कोई भी हमारा बरोवर या कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर हमसे लोन लेने आ रहा है तो हम उसकी रेटिंग करते हैं, उसकी बेस्ड ऑन उसके एक्सपीरियंस पे, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे, उसकी एज पे, उसके हिसाब से उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है।
तो 10 से लेके 14% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था। पहले ये लोन हम 4 या 5 साल के लिए देते थे, लेकिन हमने इसको एक्सटेंड किया, 5 से 10 साल तक का इसका पीरियड रखा गया, ताकि भाई अगर मान लीजिए पहले इनिशियल 1 या 1.5 साल के अंदर में अगर कोई चैलेंज आता है प्रमोटर को या जो इसमें प्लांट लगा रहा है, तो उसके लिए कोई उसको रीपेमेंट का बर्डन ज़्यादा ना हो। जितना वो लोन लेता है वो CGTMSE में कवर किया जाता है। अच्छा, इसके अंदर सब्सिडी भी है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट किसी चीज़ को जब प्रमोट करती है तो उसमें सब्सिडी देती है, तो इसमें जो सब्सिडी है वो 21 लाख पर मेट्रिक टन पर आवर पे है। अब यहाँ पे आपके लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की सब्सिडी आपको दे रही है पर आवर के बेसिस पे, लेकिन जो प्लांट आपका लग रहा है वो पर डे के बेसिस पे लग रहा है। इसमें बेंचमार्क क्या करते हैं, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपका प्लांट ये समझा जाता है कि एक दिन के अंदर वो 20 घंटे चलेगा। तो अगर आप 3 टन पर आवर की मशीन अपना लगाते हैं, पैलेटाइजिंग मशीन, तो यानी 23 जा 60, इसका मतलब 60 TPD का प्लांट हो गया, तो 3 टन पर आवर आपकी कैपेसिटी हो गई, तो 3 into 21 मीन्स यू विल बी एलिजिबल फॉर अ सब्सिडी ऑफ 63 lakhs। तो ये चीज़ प्लस इसका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट से भी रिलेटेड है। जो MNRE जो आपको सब्सिडी देती है उससे 21 लाख पर टन से निकालेंगे, या फिर दूसरा क्राइटेरिया उसका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का। इसमें MNRE के अलावा जो है दूसरा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसकी भी सब्सिडी है, लेकिन उनकी सब्सिडी की कंडीशंस है। उनकी सब्सिडी की कंडीशंस ये है कि या तो आपका प्लांट टोरिफाइड पैलेट को बनाता है, या फिर आप जो है पराली मतलब आप राइस स्ट्रॉ का बेस्ड आपका प्लांट है। तो ये दोनों इसके अंदर सब्सिडी है जो अट्रैक्शन है। इस स्कीम के बाद में अभी रिसेंटली एक और स्कीम आई है, जो कि अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपको बायोमास पैलेट या ब्रिकेट का प्लांट लगाना है, दैट इज एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम। अगर हम इस स्कीम को कंपेयर करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है कि इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने आपको बोला था 10 से लेकर 14% जो है, इसमें अप टू 2 करोड़ तक का, तो 2 करोड़ तक का अगर आप लोन ले रहे हैं तो वो आपको 9% पड़ेगा। और दूसरा जो इसमें सबसे अच्छा क्राइटेरिया वो ये है कि इसमें आपको इंटरेस्ट सबवेंशन है, मतलब 2 करोड़ तक अगर आपका जो है अमाउंट, जैसे टोटल इंटरेस्ट आपका जो आपको नॉर्मल कंडीशन में जो पहली स्कीम में जो आपको मिल रहा था, अगर ये एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लेंगे अगर, तो अप टू 2 करोड़ अगर आपका इंटरेस्ट है तो 7 साल के लिए आपको उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा। रवि सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आ रही है, जो आप की पॉइंट्स है ना उनको थोड़ा सा इंग्लिश में रिपीट कर देंगे ना। मतलब काफी लोग ऐसे हैं जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट से भी जुड़े हैं। ओके, जो की पॉइंट्स है, जैसे आपने अभी 2 करोड़ का इंटरेस्ट समझना, जस्ट दोज पॉइंट्स इफ यू कैन रिपीट इन इंग्लिश आल्सो। okay. So if we migrate, so initially we came up with a biofuel policy that only covered our all the projects which are financed for manufacturing of biomass pallet and briquettes. But recently our bank has introduced another scheme. It is called Agri Infrastructure Fund Scheme. So in that particular scheme, there are 3 or 4 benefits which are not available in our previous scheme. So in that particular scheme, the one of the very attractive thing is the your interest subvention, means up to 2 crores your interest subvention is there. Because suppose you can calculate like that, suppose your interest is coming up say 3 crores or 4 crores, so say up to 2 crores it will be reimbursed by the government. So that is available for 7%, because rate of interest is I think the second biggest cost after power. So if that is being taken care, obviously it is going to improve the viability of your project. Another thing is the rate of interest. Like I told you in the previous scheme, the rate of interest was varying from 10% to 14%. But in that particular scheme, the rate of interest is up to 2 crore, it is 9%. And suppose if your loan amount goes beyond 2 crores, suppose if it is 3 crores, so you will be charged up to 2 crore 9%, and more than 2 crores, you will be charged 12.5%. This is the second feature. Third feature is, since earlier scheme also you are taking the loan, so it has to be covered under CGTMSE scheme. So in the earlier scheme, you have the annual guarantee fees for covering your loan under CGTMSE, that is to be paid by you only. But in this particular scheme, you need not to pay any annual guarantee fees. That will be paid by the government if your loan amount is up to 2 crores. And the fourth attractive thing is the margin. Margin means, as I told you earlier, if you are taking suppose your cost of project is 100 rupees, so you need to bring your own money 30 rupees into the project, and the bank will be giving you the 70 rupee for giving you a loan. But in this particular scheme, your margin reduces from 30% to 10%. It means if the cost of project is 100 rupees,
So you need to contribute only 10 rupees, 90 rupees will be given by the bank. So this is the Agri Infrastructure Fund scheme. Suppose if you apply your loan, particularly for biomass pellet and briquette in this particular scheme, so from the bank perspective, their segment changes. Because earlier, for the bank perspective, the segment was SME segment. In this particular thing, now it becomes the agriculture segment. And obviously, for government also, they want to promote the agriculture sector itself. So that's why there are so many benefits and incentives are available in the agriculture sector. So this is regarding the biomass pellet and briquette, and as I already told you, means the biggest challenge is the procurement of raw material. Two things: in the right quantity at the right time and the right price. Because if the price goes beyond, because normally you earn normally 1 rupee to 1.5 rupee per kg. If the price of raw material increases by 1 rupee or increases by maybe a 2 rupees or so, so a situation may come, you need to stop your plant. Otherwise, you have to book the loss. So there are other things, and there are few more things. If you permit, I will also explain you. The moisture also, this plays a very vital role, because whatever the pellets you manufacture, the limit is 14%. Means the NTPC, if they buy any pellet from you, your permissible moisture is 14% only. So that's why you need to have a biomass which will be having a moisture content of 14% only. Your machinery also, they will be processing, or they will bind or make the pellet if your moisture level is 14%. Suppose if you want to manufacture uh, biomass pellet based on your rice straw. So the rice straw, normally they are having a moisture content of 25%. So you need to reduce the moisture content. For that, you need to put up a dryer also. So putting up a dryer also means you need any capital cost. You need to invest more money into that, and that will bring a additional operational cost also, because you have to heat up. You have to heat up your raw material to reduce the moisture content from 25% to 14%, because that only it will be functional in the machines if you want to manufacture the pellet or the briquette as well. So normally what units do, while the other unit, like you are saying right now, we are sitting in the monsoon season. So these 2 or 3 months monsoon season, in most of the pellet plants, they normally shut their plant, because it is very difficult to manufacture the pellet, because the moisture content is very, very high. So this is regarding biomass pellet or briquette, the scheme. The two schemes I have told you. Earlier scheme was there; it was based on biofuel based scheme, and now recently, if you want to invest in a biomass pellet or briquette, so you can also opt for agriculture infra fund scheme. So there it is, 3 or 4 additional features are there, which is very, very lucrative, because there are interest subvention is there, subsidy is there. The subsidy will remain the same. Subsidy will remain the same, which will be getting in the earlier scheme. Margin is there. मैक्सिमम लोन कितना मिलेगा सर? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, जो भी हैं सर। आप अब हिंदी इंग्लिश दोनों से आप कंफर्टेबल हैं? कोई आपने वो पॉलिसी जो बता दी है नाउ, अच्छा, आप जैसे तो ये दोनों चीजों में करने के बाद में अभी हम बायोमास पैलेट, एंड इट इज माय रिक्वेस्ट, अगर आप वाकई इफ यू रियली वांट टू इन्वेस्ट, या आप इन्वेस्ट करने का बात सोच रहे हैं, तो जो प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आई थिंक अनामिका विल शेयर माय नंबर, सो यू कैन वेरी वेल कम एंड डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट, बिकॉज दैट टेक्स टाइम. तो ये इस चीज के अंदर, अगर मान लीजिए अगर आपको 2 या 3 चीजें या पॉइंट्स कुछ स्कीम के बारे में, या मान लीजिए प्रोजेक्ट के बारे में नहीं समझ में आता है, तो यू जस्ट राइट इट डाउन एंड वी कैन डिस्कस लेटर ऑन. तो यहाँ पे हमने बायोमास पैलेट और ब्रिकेट का अपना जो स्कीम है वो फिनिश कर दिया है. अब हम जाते हैं कंप्रेस बायोगैस में. कंप्रेस बायोगैस जो है, दैट इज मोर कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट. इसके अंदर क्या है कि आप कंप्रेस बायोगैस बनाते हैं. इसमें भी आप बायोमास जो है उसको आप स्टोर करते हैं डाइजेस्टर के अंदर में. उसको 30 या 32 दिन के अंदर में उसके अंदर जो है बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, और 30 या 35 दिन के अंदर में आपको बायोगैस मिलती है. बायोगैस बनाने के लिए भी दैट इज आल्सो द अनदर स्ट्रेटेजिक थिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हम जो है लिक्विड नेचुरल गैस जो है वो इंपोर्ट करते हैं. लिक्विड नेचुरल गैस भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की तरह ही है. जिस तरह से हमने टारगेट रखा हुआ है कि 2030, आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम्स के अंदर में वो सारी की सारी 2030 पे खत्म होती हैं, चाहे वो सोलर हो, चाहे सीबीजी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, एवरीथिंग. तो उसी तरीके से, बिकॉज हमने एक टारगेट ले रखा है कि किस तरीके से हम अपना जो इंपोर्ट है जिसपे हम डिपेंडेंट हैं उसको हम कम कर सकें.
आज ही आप देख रहे हो, आप न्यूज में आपने देखा होगा कि ट्रंप जो है उन्होंने नाराज होकर 25% सैंक्शन लगा दिए उन्होंने, बिकॉज हम लोग जो है सस्ता पेट्रोलियम अपना रशिया से ले रहे थे। सो दैट्स वाई, तो गवर्नमेंट जो है दे वांट टू रिड्यूस देयर इंपोर्ट बिल। तो उसकी वजह से क्या है कि वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस लेने की बजाय वो ये चाहती है कि ज्यादातर लोग जो है कंप्रेस बायोगैस बायोमास से अपने प्रोड्यूस करें हमारे देश के अंदर ही, ताकि हम लोगों की जो डिपेंडेबिलिटी है वो कम हो। तो ये जो प्रोजेक्ट, कमिंग टू द प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट जो होता है वो काफी कैपिटल इंटेंसिव है। जैसे मान लीजिए अगर आपको 3 या 4 टीपीडी का अगर प्रोजेक्ट लगाना है तो आपको करीब 25 करोड़ से लेके 30 करोड़ तक की जरूरत पड़ती है। इसमें भी वही चैलेंजेस हैं, जिसमें बायोमास जो है उसको एग्रीगेट करना बहुत बड़े, क्योंकि जैसे बायोमास मैंने बोला था कि बायोमास पैलेट या ब्रिकेट के अंदर अगर मान लीजिए आपको 100 टन बनाना है तो आपको 100 टन रॉ मटेरियल चाहिए। सीबीजी के अंदर में ये उससे ज्यादा चैलेंजिंग है, इसलिए कि यहाँ पे आपको जितनी आपको गैस बनानी है उसका 20 टाइम्स या 30 टाइम्स आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो ये अगर आप सीबीजी का प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें कैपिटल कॉस्ट भी है, प्लस देयर आर अनदर चैलेंज ऑफ स्टोरिंग एंड एग्रीगेटिंग एंड कलेक्टिंग अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ बायोमास। तो बायोमास आपका कुछ भी हो सकता है। अभी एट प्रेजेंट यूनिट है, मेरे ख्याल से अभी तक ये स्कीम जो है सतत शुरू हुई थी 2018 में, 2019 के अंदर में हमारी स्कीम आई, और उस समय उद्देश्य था कि गवर्नमेंट का कि 2023 तक हमारे 5000 सीबीजी के प्रोजेक्ट जो है वो लग जाने चाहिए। उसके बाद फर्दर चीज रिवाइज हुई, अब जो है 2030 तक 5000 प्लांट लगाने की बात हो रही है, लेकिन इन एक्चुअल अभी जो है करीब 70 से 75 बायोगैस के प्लांट जो है वो लगे हुए हैं, और उसमें से 60 से 70% जो है वो प्रेसमेट बेस्ड है। मैं इसमें फ्यूल की बात कर रहा था कि बायो जो सीबीजी बनाने के लिए नॉर्मली जो लोग जो क्या क्या लेते हैं, सबसे ज्यादा जो प्लांट लगे हैं वो प्रेसमेट पे लगे हुए हैं, क्योंकि वो जो है उसको इकट्ठा करना, कि नॉर्मली क्या किया जाता है कि एक शुगर मिल जो है उसको टारगेट आप कर लेते हैं, क्योंकि शुगर मिल जो है वो काफी सालों से चल रही है, तो वहां से जो प्रेसमेट बनता है वो प्रेसमेट आपके पास आता है, उसको आप प्रोसेस करके आप सीबीजी बना लेते हैं। दूसरी चीज जो आ रही है वो आ रही है नेपियर ग्रास। नेपियर ग्रास के ऊपर जो है काफी ज्यादा रिसर्च हो रही है, काफी सारे लोग इसमें जाना चाहते हैं, और ये, लेकिन नेपियर के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है उसको ग्रो करना है, क्योंकि उसके लिए कम से कम अगर 4 या 5 टीपीडी का प्लांट है आपको, तो आपको कम से कम 400 से 500 एकड़ जो है जमीन चाहिए, और 400 से 500 एकड़ जमीन जो है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज 40-50% ऑफ द एरिया ऑफ एन एयरपोर्ट रिक्वायर्ड। और उसके बाद भी उन चीजों को मैनेज करता है। आप सोचिए कि इतने सारे ट्रक चलेंगे, आप उसको कटाई करेंगे, तो इट विल बी लाइक अ प्लाटून, जैसे आर्मी का कोई प्लाटून चल रहा है उस लेवल तक का अगर आप लॉजिस्टिक कंट्रोल या मैनेज कर सकते हैं, देन आल्सो यू शुड गो फॉर द नेपियर। तो उसके बाद जो है काउडंग हो गया, काउडंग बेस्ड भी है, लेकिन काउडंग में जो है बड़ी कम आती है आपकी रिकवरी। काउडंग बेस्ड भी है तो कोई जहाँ पे बहुत सारी गौशाला है, जहाँ पे 5000, 6000 या 7000 गाय है या भैंस हैं, वो लोग टारगेट करके अपना काउडंग पे भी बना लेते हैं। और चौथी चीज आती है राइस स्टॉक, जो पराली जैसे बात किया। लेकिन ये सारी चीजों के अंदर भी सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जैसे मान लीजिए हमारे देश के अंदर 2 ही तरह की होती है बायोमास, एक तो रबी की क्रॉप होती है और एक खरीफ की होती है। तो बायोमास जो आपको एक 6 महीने में अवेलेबल होगा वो साल के दूसरे 6 महीने में अवेलेबल नहीं होगा। तो इसीलिए आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में टारगेट करेंगे तो दिसंबर में खाली हो जाएंगे। सो इन द सिमिलर मैनर इफ यू आर टारगेटिंग इन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन ड्यूरिंग द विंटर टाइम, Please unmute. Except the speaker, please unmute yourself. because the things which I am telling you, so most of the people will be tempted to ask questions, so that's why I am telling you, kindly write it down, and then later on we can discuss. So पराली पे, जब पराली का जैसे हम आते हैं, पराली का थोड़ा यील्ड ज्यादा है, लेकिन वही मैं कह रहा था जैसे कि इसको मैनेज करना, जो रॉ मटेरियल को मैनेज करना, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्राइस, बिकॉज इफ यू मैनेज द क्वांटिटी देन यू विल बी लूजिंग द प्राइस। तो जो लड़ाई है, द फाइट इज बिटवीन द क्वांटिटी एंड द प्राइस, इन चीजों को बैलेंस करना इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो इसीलिए कई बार हम वायबिलिटी को देखते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि हमने बायोमास पैलेट को इंट्रोड्यूस किया बायोफ्यूल में, इसीलिए हमने बैंक में कॉर्पोरेट सेंटर से बात करके, क्योंकि पहले हम लोग जो अपनी स्कीम थी हमारी, उसमें रीपेमेंट पीरियड 8 से 10 साल का रखते थे, लेकिन हमने जब देखा कि भाई ये जो चीज़ है इसमें वायबिलिटी नहीं आ रही है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया। तो अभी जो है हमारे जितने भी सीबीजी के प्रोजेक्ट हैं उसमें हमने रीपेमेंट जो है वो 15 साल तक का कर दिया, ताकि जो है उसकी वायबिलिटी आए, क्योंकि
देखिए दोनों चीजें जो है बहुत ही कंट्रोल्ड है। आपका रॉ मटेरियल जो है उसका प्राइस फिक्स है एंड मोर ओवर इट इज फ्लक्चुएटिंग, इट इज इंक्रीजिंग एंड साइमल्टेनियसली आपका जो सीबीजी है उसका भी प्राइस जो है इट इज मोर और लेस फिक्स, वो 70 रुपए किलो बिकता है। तो इन दोनों के बीच में आपको जब चलते हैं इन एक्चुअल कंडीशन में तो आपका चीज स्क्वीज हो जाता है। और जो आती है तीसरी चीज, इसमें एक और एंड प्रोडक्ट भी आता है, उसको बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर, जो कि 15 से 20% होता है। उसको बेचना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप सोचिए कि डेली अगर जैसे मान लीजिए आप 5 टीपीडी का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, नेपियर का ही मैं बात करता हूं अगर, तो डेली आपको कम से कम 20 टन जो है नेपियर की जरूरत पड़ेगी। अब 20 टन नेपियर में से आपको 20 नहीं है, ज्यादा ही। हेलो, हाँ जी सर, प्लीज। सर 20 टन नेपियर से नहीं होगा। हाँ मैं सर प्लीज। 100 टन नहीं 100 टन ही नहीं होगा, 80% मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो ये सुनिए, नेपियर ग्रास इज बेसिकली स्कैम, नेपियर ग्रास इज बेसिकली स्कैम। सर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज उसको चैट बॉक्स में डाल दीजिए। वायो ग्रीन एनर्जी, दिस इज माय रिक्वेस्ट। इसीलिए मैंने कहा कि मैं जो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूँ, आई मे नॉट बी 100% राइट इन दैट। मैं ओवरऑल जो है आपको इंडस्ट्री का व्यू बता रहा हूँ, और तक उसके बाद देन विल बी कमिंग टू द अवर स्कीम। उसके बाद देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन दैट। तो दिस इज रिगार्डिंग दिस इज द चैलेंज रिगार्डिंग द बायोमास अरेंजमेंट, पर्टिकुलरली फॉर कंप्रेस्ड बायोगैस आई एम टेलिंग, बिकॉज द क्वांटिटी इज वेरी हाई। तो इसीलिए हमारी जो स्कीम है इसके अंदर जो दो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वो ये रखे हैं कि सीबीजी के लिए हम इंश्योर करते हैं कि देयर हैज टू बी अ टाई अप फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंडली फॉर सेलिंग आल्सो देयर हैज टू बी अ लॉन्ग टर्म ऑफटेक एग्रीमेंट फॉर सेलिंग ऑफ सीबीजी, बिकॉज आपका जो सीबीजी बन रहा है that can be sold to only our marketing companies, जो कि हमारे देश के अंदर IOCL, BOPCL, HPCL। तो ये दोनों चीजें जो होती हैं then only we accept that। and secondary इसके अंदर जैसे मैंने बात करी सब्सिडी की, मैं बात करता हूँ अगर, तो सब्सिडी में इसमें दो सब्सिडी हैं, एक तो सेंट्रल की सब्सिडी है और एक उत्तर प्रदेश में। इफ यू आर पुटिंग योर प्लांट इन उत्तर प्रदेश देन देयर इज अ सेपरेट सब्सिडी गिवन बाय द यूपी। So if you talk of a central subsidy, the subsidy is around rupees 4 crore per around 5 metric ton, and for state subsidy it is 75 lakh per metric ton. If we talk about the loan quantum, so same 30% margin is there, 70% the bank loan will be given. Here's the biggest deterrent is the collateral security. Now the collateral security is the 50%. Because of this is the main deterrent that also we raised with the corporate center also. They are working on that because 50% collateral security is required. Now 50% collateral security, now our CGTMSC is also covered that one. Recently, one good thing is the CGTMSC amount has been increased from 5 crores to 10 crores. So suppose if you are having a loan exposure of maybe 40 crores, so you require a collateral security of 20 crores. So out of 20 crores, your CGT-MSC covered up to 10 crores, that can take care. So that can take care, and another 10 crores you need to bring. So this is regarding the collateral security. The rate of interest is ranging from 8.75% to 11.2%. It is depending on the credit rating. And the loan, as I already told you, because intentionally we have increased the loan duration from 10 years, because 3 years back we were extending the loan up to 10 years, but the viability was not coming for most of the projects, because now many the sugar mills also now, because they understand that earlier nobody was buying the pressmud from them, so they are also escalating their prices. But the escalation in prices of raw material is not in the same manner our increase in selling price of our compressed biogas. So that's why it is putting a strain on the cash accrual. So that's why 15 years loan repayment is there. So this is regarding the basic our two policy what we are funding for biomass pellet as well as the compressed biogas. So this is the broadly what I'm telling regarding all the criteria and all. So I may be wrong in some of the facts, but that's why, because I want to pinpoint the particular points of the industry as such, because many persons are coming, because during last 2 months I have received more than 35 proposal or promoters. I had with a discussion with them, and almost 70 to 80% were like that, because either they were not prepared regarding they did not do any homework regarding the raw material,
Some of them did not do the homework regarding the technology, because technology also plays a very important role. And another thing is, means like what are all the approvals and whom they are going to sell in case if the production is very less. They have not done proper homework for that. So that's why, because as a bank, the bank are there for lending only. But that's why most of the proposal, if they come to us, if they don't go through or they do not qualify for taking the loan, so there are things, because the promoter either they have not prepared the thing well for the project, or maybe he's not able to communicate well to the bank. So with that, I just uh, stop the discussion over here. So if any question or queries there, most welcome. जस्ट सेकंड, थैंक यू सर, थैंक यू रवि जी, आपने मतलब बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और डेप्थ में नॉट ओनली द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव बट ऑपरेशन चैलेंजेस भी जो हैं या एक प्रोजेक्ट प्लानिंग में जो चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर एप्लीकेशन स्ट्रगल करती हैं, आई थिंक यू हैव टच्ड अपॉन दैट आल्सो. देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक द क्वेश्चंस which are being shared in the registration form, then we'll take the questions from the audience as well. Yeah. So sir, एक तो AIF की लिमिट जो 2 करोड़ रुपए की है, इज देयर एनी डिस्कशन दैट इट कैन बी इंक्रीज टू, बिकॉज आप खुद ही कह रहे हैं रॉ मटेरियल के प्राइसेस हम सब जानते हैं काफी बढ़ चुके हैं. हाँ, क्योंकि इसमें क्या है कि 2 करोड़ में, जैसे मान लीजिए कि इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, कि हर लोन के अंदर एक कहते हैं ना ऑप्टिमम वैल्यू होती है कैपेसिटी की. तो ज्यादातर बायोमास पैलेट के जो प्रोजेक्ट हैं, आप 80 या 100 टीपीडी से ऊपर जाते हैं, देन इमीडिएटली द चैलेंज कम्स इन प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल. ये बिल्कुल वैसे ही मैं कहूंगा कि मैं एक इंडिविजुअल प्रमोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, एक एग्रीगेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जो कि काफी ज्यादा जिसने होमवर्क कर रखा है. क्योंकि ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 176 लोग अगर जुड़े हुए हैं, तो काफी ज्यादा उनकी संख्या ऐसी होगी जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर होंगे या सोच रहे होंगे अपने बारे में. तो आप ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा अगर हम देखते भी हैं कि जो हमारे पास डाटाबेस है, ज्यादातर पैलेट और ब्रिकेट्स के जो प्लांट लगे हैं वो ज्यादातर 30 टीपीडी से लेके 60 या 70 टीपीडी के लगे. क्योंकि 80 या 100 टीपीडी पे जाने के बाद क्या होता है कि आपका जो कंट्रोल है, आपका कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ बायोमास एज वेल एज द प्राइस ऑफ बायोमास, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है. और अगर आप प्लांट 60 या 70 टीपीडी का लगाना चाहते हैं तो 2.5 से 3 करोड़ में आपका लग जाता है. और 2.5 से 3 करोड़ का अगर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है तो 2 करोड़ के लोन में आपकी बात बन जाएगी. बिल्कुल. 1.1. सर इसमें एक क्वेश्चन और जो हमारे पास बार बार काफी लोगों से आया है वो ये है कि क्या डिफरेंट कंपनी के स्ट्रक्चर से, दैट कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड अ फर्म और इट्स अ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. उससे क्या फर्क पड़ता है लोन एलिजिबिलिटी पे? इसमें जैसे मान लीजिए इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन वेंचर, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एक फर्म बनाएं. अब फर्म आपका प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, उसके बाद एलएलपी होता है आपका, और उसके बाद में आपका प्राइवेट लिमिटेड होता है. बैंक जब लोन देता है वो ये देखता है कि वो उसका डिग्री ऑफ लीगैलिटी में, अगर आपका जो प्राइवेट लिमिटेड है उसको बैंक जो है वो ज्यादा सेफ मानता है बेमुकाबले पार्टनरशिप के, और पार्टनरशिप को फाइन मानता है बेमुकाबले प्रोप्राइटरशिप के. तो वो जैसे हम लोगों का सैंक्शनिंग भी होता है तो उसमें ज्यादा ड्यू डिलिजेंस होता है, कई बारी लिमिटेशंस भी आ जाते हैं. कई बारी काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हमारे पास जहाँ पे लगता है कि अभी मैं पोटैटो फ्लेक्स का एक प्लांट कर रहा था जिसमें 40 करोड़ का लोन वाज गुड, लेकिन क्या है पार्टनरशिप होने की वजह से जो हमारी कमेटी है उनका वो व्यू तो था, कहते हैं कि नहीं दिस इज, तो हमने बोला भी कि भाई आप उसको सब कुछ है, आपका मार्केट सही है, बेस्ट ऑफ द मशीन्स आप लेना चाहते हैं तो आप जो है प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाइए. तो दे नॉट ओनली स्टेट बैंक बट मोस्ट ऑफ द बैंक्स. तो अगर आप मान लीजिए कि बड़े ऑर्गेनाइज वे में अगर चलना चाहते हैं और अभी पार्टनरशिप है या प्रोप्राइटरशिप है, तो आप अच्छा है कि आप उसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर लें. तो बैंक का या फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्रोजेक्ट जो है वो साउंड हो जाएगा. ओके. अच्छा सर, मेरा जो अगला जो क्वेश्चन वो बहुत आया है कि काफी लोगों ने यही कहा कि एआईएफ को क्या गवर्नमेंट 2 से करोड़ से बढ़ाने का कुछ विचार कर रही है, मतलब 5 करोड़ 10 करोड़ तक का? देखिए गवर्नमेंट का जो चीज है दैट दे कैन ओनली टेल. बीइंग अ बैंकर मैं आपको यही बता सकता हूँ कि व्हाट इज प्रेजेंट विद अस, हाँ जी बिल्कुल. जिसमें हम टच में रहते हैं, बिकॉज ये एग्रीकल्चर सेगमेंट है हमारा. तो ऑब्वियसली तो एग्रीकल्चर के अंदर काफी ज्यादा, बिकॉज ये पोस्ट हार्वेस्ट पे है बेसिकली. ये हाँ जी बिल्कुल. जैसे हम पोस्ट सर एक क्वेरी था मेरा, अगर उसको कोई भी चीज जैसे हम बना के, सर एक मिनट, अभी जो क्वेश्चंस हैं उनको रेज करने के बाद आई विल गिव यू अ चांस. अभी वी हैव अ टाइम अवेलेबल. सर एक क्वेश्चन ये था कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बार बार आप चैट पे भी देखेंगे तो काफी लोगों ने पूछा है कि सेंट्रल लेवल पे तो स्कीम्स ड्राफ्ट हुई हैं, काम भी हो रहा है, बट जो लोकल ब्रांचेस हैं आपके जो नजदीक है जहाँ प्रोजेक्ट लगाने, क्योंकि ये एग्री फोकस प्रोजेक्ट है. फॉर एग्जांपल मुझे किसी रूरल एरिया में प्रोजेक्ट लगाना है
वहां पे इन स्कीम्स का सर बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, और काफी जगहों पे जो वहां पे आपके बैंक मैनेजर्स वगैरह या जो भी स्टाफ अवेलेबल है, तो उसके लिए एंटरप्रेन्योर्स क्या करें, मतलब होम दे शुड अप्रोच, कोई आर देयर स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस फॉर दिस इन द स्टेट? नहीं तो नहीं, थोड़ा। जैसे मैं स्टेट बैंक का ही अपना बता देता हूँ कि हाँ जी। हमारे यहाँ पे क्या है कि हम लोगों की जैसे हमारे टोटल 17 सर्कल हैं अभी, जैसे हम लोग हैं दिल्ली सर्कल में। तो दिल्ली सर्कल के अंदर जैसे हमारी जो एसएमई को कैटर करने के लिए कम से कम 50 ब्रांचेस हैं। तो अगर आप कमर्शियल लोन लेना चाहते हैं और आपका सेगमेंट जैसे मान लीजिए बायोमास पैलेट है या सीबीजी का प्रोजेक्ट, तो डायरेक्टली आप उस ब्रांच में जा सकते हैं। उन ब्रांचों के पास में कोई बाकी दूसरा काम नहीं रहता। दे आर मेंट फॉर ओनली एसएमई लोनिंग एंड दिस फैसिलिटेटिंग दैट। ओके। उसी तरीके से एग्रीकल्चर के लिए भी हमारी डेडिकेटेड एग्रीकल्चर ब्रांच है, आप वहां पे अप्रोच कर सकते हैं। या मान लीजिए अगर आपको लोन ही देना है, तो जैसे मान लीजिए प्रमोटर है, अगर वो उस चीज को नहीं भी जानते हैं, तो आप किसी भी ब्रांच में चले जाइए, वो आपका फॉरवर्ड कर देंगे हमारे एग्री स्पेशलिस्ट सेंटर को। हमारा ओके। एग्री सीपीसी बोला जाता है। तो अगर आपको जरूरत नहीं है कि आप परेशान हो कि भाई आपका एग्री सीपीसी कहाँ पर है, तो अगर आप किसी ब्रांच में जाएंगे और पूछते हैं कि भाई हमारा ये लोन है, ये देना है, तो वो उसको फॉरवर्ड करके हमारे एग्री सीपीसी में उसको फॉरवर्ड कर देंगे। और दूसरी सर। बात आपने जो बताई कि अभी जो है गवर्नमेंट का भी फोकस एग्री का है, और अभी बैंक्स का भी फोकस पूरा एग्री का है। और अभी मैं ये आपको बताऊं कि इवन जो एसएमई की जो परिभाषा है वो भी अभी एग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज की। अभी ये बोला जा रहा है कि भाई काफी पहले क्या होता था कि हम एग्री को यही समझते थे कि भाई पोल्ट्री हो गया, फिशरी हो गया, पिगरी हो गया, या मान लिया डेयरी हो गया। अब जो है जो प्रोसेसिंग वाला भी अब ये मान लिया गया है कि अगर आपका रॉ मटेरियल अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड है या फिनिश गुड है, तो उसको भी आप एग्रीकल्चर समझ सकते हैं। और अगर फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड की बात करें, तो जितनी फूड प्रोसेसिंग के अंदर आप सब्सिडीज गवर्नमेंट अवेलेबल करा रही है, मेरे ख्याल से बाकी किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर ये जो लिस्ट आप बता रहे थे, जो एग्री सीपीसीबी ब्रांच बता रहे हैं, इसकी कोई लिस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है क्या? नहीं, ऑनलाइन नहीं, आप किसी हमारे ब्रांच को अप्रोच कर सकते हैं। नॉर्मली क्या है कि इन जगह में हमारे स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स पोस्ट होते हैं। तो हमारी एग्रीकल्चर जो है, आप अपनी ब्रांच में आप कहीं पे आप जहाँ पे पोस्टेड हो, आप उनको बोल दीजिए, वो उसको फॉरवर्ड कर देंगे अपनी उसी ब्रांच में। ओके। ये देख लीजिए आपका जहाँ पे आप रहते हैं या मान लीजिए काम करना चाहते हैं, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसके पास में कोई ब्रांच आप चूज कर ले। वो ब्रांच जो है वो देखेगी आप एसएमई, अगर आपका लोन आपका एसएमई के अंदर देना है, तो एसएमई ब्रांच बाईपास पे यू टर्न मार के आ जाएंगे। सर आप प्लीज अपना फोन म्यूट कर लीजिए अभी। मैं सबको चांस दूंगा अभी। हमारे पास थोड़ा टाइम है अभी। हमने जो हमें क्वेश्चंस रजिस्ट्रेशन में मिले थे, तो हाँ जी, तो सर अब आई थिंक नाउ विल टेक अप द क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। ये श्याम शर्मा जी हैं। सर आप एक बार उनके, फिर रामचंद्रन सर के पास हम आएंगे उनके क्वेश्चन के लिए। हाँ सर, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए आप रवि जी से। सर मैं ये कह रहा था कि आपने जैसे बताया कि आपने एनटीपीसी से टाई अप करके और इस स्कीम को, इस सिस्टम को डेवलप करके स्कीम को डेवलप किया है। तो नया एंटरप्रेन्योर कोई जुड़ना चाहता है तो दे आस्क फॉर देयर एस्टेब्लिश्ड प्लांट। तो एस्टेब्लिश्ड प्लांट को लेकर के बड़ा वो है कि भाई एलओआई तो तभी जनरेट होगा ना जब हम, मतलब वो पहले एलओआई नहीं देते हैं, पहले वो एस्टेब्लिश्ड प्लांट को देखते हैं। अब अगर हम बड़े प्लांट की कैपेसिटी में जाना चाह रहे हैं तो किस तरीके से जाएंगे? नहीं, लेकिन जैसा आप मुझे बता रहे हैं कि वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है पहले वो सिर्फ ऑर्डर देखते थे, और काफी सारे प्रोजेक्ट हमारे पास ऐसे आए हैं कि जैसे मान लीजिए आपने एनटीपीसी में ऑर्डर प्लेस किया, टेंडर आपने प्लेस किया और आपको मिल भी गया, तो आपने ये है कि भाई ठीक है, मैं आपको डेली जो है 30 टन या 50 टन जो है इतना दे दूंगा। उसके बाद आपको फाइनेंस होता है और फिर आप प्लांट लगाते हैं। नहीं सर, वो 3 महीने का, लगभग 3 महीने का टाइम देते हैं फॉर सप्लाइंग ओनली। अच्छा मतलब कि 3 महीने में आप सप्लाई करिएगा, अच्छा। क्योंकि एलओआई एटलीस्ट 1 साल का टाइम हो तो फिर तो अब मतलब ये बड़ा, हम काफी पिछले 6 महीने से इसके ऊपर एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम 100-200 टन का प्लांट लगाना चाह रहे हैं, वो भी 2 जगह पे। लेकिन ये बड़ा इशू हमने बहुत सारे टेंडर्स में देखा है, हर टेंडर में यही सिचुएशन नहीं, लेकिन आपका वैलिड रीजन है, क्योंकि 3 महीने के अंदर लगाना प्लांट ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। है। पॉसिबल ही नहीं है सर। हाँ, पॉसिबल नहीं है। मिनिमम तो 1 ईयर आप तो। ऐसा कर सकते हैं, या तो हम मिशन समर्थ में या तो इस चीज को रेज कर सकते हैं, क्योंकि वहां से वो चीज जो है अल्टीमेटली जो टेंडर होना है, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है अगर वो ऐसा है, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर इसके बारे में। लेकिन अगर आप प्लांट कोई लगाना चाहते हो तो कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल का आपको समय चाहिए ही चाहिए। सर छह अभी आप महीने 6 महीने तब चाहिए जब हमारे इन एंड सब कुछ है, फाइनेंस भी, लैंड भी, सब एवरीथिंग। 6 महीने जब हम मान सकते हैं, अदरवाइज मोर देन 1 ईयर, एटलीस्ट 15 मंथ्स तो बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये हमने 6 महीने से बहुत टेंडर्स को एक्सरसाइज किया हमने, ये मतलब हमने मतलब काफी देखा है इस चीज का। नहीं, आप आपका
नहीं, आपका पॉइंट जो है बिल्कुल वैलिड है और इसको वहां तक पहुंचाना चाहिए मेरे ख्याल से। जी। रवि सर, एक रिक्वेस्ट आ रही है, आपका नंबर अगर पॉसिबल हो तुम शेयर कर दें क्या हाँ चैट हाँ पे? प्लीज, इसलिए मैंने कहा। नहीं अनामिक देखिए, अनामिक नहीं अमन जी, हाँ जी आप नंबर सुन और पा ईमेल रहे हैं? आईडी दोनों दे दो। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। नहीं, इसीलिए मैंने कहा है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, हम टीम्स में मीटिंग करते हैं या सेमिनार में जो होता है, तो क्या है कि 2 या 3 इशू तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट में ज्यादातर लोग क्या होंगे कि उनके एक नहीं होते, एक प्रोजेक्ट के अंदर कम से कम जो है 25 से 30 इश्यूज होते हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो आप पर्सनली आके मिल लें मेरे को, पहले कॉल कर दें कि वेदर आई एम अवेलेबल और नॉट, तो आप मेरा प्लेस जो है जहाँ पे मैं बैठता हूँ या वो आप शेयर कर सकते हैं। वहाँ का सर आपका नंबर आप एक बार अनामिका जी के पास से बोला शेयर कर दें जो है। नंबर और ईमेल आईडी दोनों दे दो। हाँ जी। Yeah, we अनामिका can जी, do आप it, सर का Aman. नंबर और sir. ईमेल आईडी प्लीज Aman, दोनों शेयर कर दीजिएगा। मैं Aman, हाँ जी after the webinar is over, you speak to Ravi ji, take his comfort for the which number and which email. ठीक है। Then all those who have registered, they can be sent an email with those details. Don't share श्योर सर, personal numbers, otherwise he will have श्योर issues day and night. श्योर सर। वो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे। Ramachandran ji was there. He wanted to Yes, ask yes, a yes, question. yes, yes. Am I audible? या Am I या सर, audible? हाँ, Yeah, yes. thank you. Good evening, sir. समय का पाबंदी है, तो लेट मी मेक इट वेरी क्विक। आपने पहले मैं पैलेट के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले आपने CGTMS की बात किया, उसमें अगर यूँ समझिए कि प्रोजेक्ट कॉस्ट है 5 करोड़, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन 30% है, कोई सेकेंडरी कोलैटरल का जिक्र नहीं है उधर सर जी? हाँ हाँ, मीन्स योर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 5 crores 5 crores. and okay, how much, what is your margin in that? नहीं, यू सेड CGMSE स्कीम में, CGTMSE स्कीम में 30% है करके, तो वो अगर लेके आए बस, नो सेकेंडरी कोलैटरल का जरूरत चाहिए ना? No, sir, I want to rectify that. What हाँ. I told is, because in all the project, whether your cost of project is 5 crores or 4 crores, so invariably the bank will be covering under CGTMSE. Okay. For that, you need to pay annual guarantee fee that is ranging from 1% to 1.4%. Okay. So once it is over, the bank will not ask for any other collateral. That is what, sir. So secondary collateral करके asset coverage के लिए कुछ नहीं चाहिए. 30% we have to bring in as our margin, right? Yeah, that's all. So 5 crore mean 30% is 1.5 CR. Yeah. But our experience with SBI is on the contrary, number one. Number two, sir, with regard to the NAIF scheme, AIF scheme, last question, AIF scheme, 2 crores तक 10% है. But उसके ऊपर वाला जो भी portion रहेगा, उसमें बैंक SBI basically says ऐसा हम डिवाइड करके नहीं करेंगे, कंपार्टमेंटलाइज नहीं करेंगे. तो when you are saying that if your project cost is about 3 crores or you want a loan of 4 CR, then the entire 4 CR will be at 25% contribution and not at 10% up to 2 CR, and the balance will be at 20 or whatever, 30 or 25%. So is there a bifurcation like that, sir? Because that impacts. Yeah, absolutely. What you are telling is, suppose your cost of project is, suppose I am telling you up to 90 crores. So 2 lakh, if it is 2 crores, 20 lakhs or something. So for that, to 2 crores, it is okay. But if it is goes beyond that, maybe a 4 crores or something like that. So for that, the normal margin will be there. Okay. So the last point is that, because see, the question of requesting for increase in NAIF, AIF loan amount is because if you are talking about Napier grass, there are additional machines to be employed. Okay, it is not the typical pellet ecosystem alone will suffice. I need to put a dewatering machine, etc. I have to put a dedicated different type of dryer, not the usual dryers. So all these things costs are higher, sir. So that is the reason why our project cost also becomes higher. Okay. Yeah, but as I telling you, Ramachandran ji, Haan are you ji. listening? Are you Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please बताइए. So because as you are telling, Napier, because I have seen, because I have not seen any particular project, but I have heard only some 2 or 3% means they are planning for, because the Napier grassroot, it is having a substantial calorific value. Yes, sir. That's why most of the person, they are planning, they want to grow on a very large area, because Yes. few person, they came from Andhra Pradesh also to me. So they were telling they are going to very Napier in a very large manner. So one part they will be using for CBG project, and another plant they will be making a pallet out of it. Yes. So we are also dedicatedly having our own field, sir. Captive cultivation, because that's the only answer for regular all year round supply of raw material. So we have Okay. control over that, sir. Yeah, I will Ramachandran contact ji, you I in think- person. I will contact Yeah. you in person. Thank you. Thank you. Yeah, we'll share in the we'll share in the Yeah, mail sir's contact details. Perfect. Now Thank I you very will much. request Anand Bansal ji, you have a question?
No, sir, I think you can take others. The Hello, my sir. question is answered. Okay. So I'll ask Rohit ji. Rohit. Yes, sir. Good Mandawari. evening. Straight to the point. अभी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस में सीबीजी प्लांट के लिए सतत स्कीम के थ्रू प्राइमरी सिक्योरिटी अगर हो तो एडिशनल सिक्योरिटी के लिए कोई ऐसा क्लॉज दिया नहीं है, बट बैंक्स का क्लॉज एडिशनल सिक्योरिटी के लिए है, कोलैटरल के लिए। तो वो बैंक को कैसे, मतलब बैंक के गाइडलाइंस में कैसे एडिशन है सर, उसका थोड़ा सा डिटेल। नहीं, लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं ना, प्राइमरी सिक्योरिटी तो रहता ही रहता है, बिकॉज बेसिकली जो है हमारे जो जितने भी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंक जो ट्रेडिशनल लैंडिंग जो करते हैं, दैट इज वी कॉल इट सिक्योरिटी बेस्ड फाइनेंसिंग। तो एक तो प्राइमरी सिक्योरिटी रहता है, दैट इज द एसेट क्रिएटेड आउट ऑफ बैंक फाइनेंस। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई 100 रुपीज का पेन लिया, तो 100 रुपीज का जो पेन आपने लिया उसके ऊपर जो चार्ज क्रिएट करेगा, दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी सिक्योरिटी। बट वो उसके ऊपर में बैंक भी आज कि नहीं, हमको 100 रुपए के पेन के अलावा 20 रुपीज का एक पेंसिल भी चाहिए, सो दैट 20 रुपीज पेंसिल विल बिकम द कोलेटरल सिक्योरिटी। ओके सर। सो दीज आर द टू थिंग्स बेसिकली। ओके सर। Okay. Then Mr. Dhanaji Vasekar, sir, I'll take few more questions only. Dhanaji, sir, what's your question? हेलो। Okay. Yeah. हेलो। हेलो। Yes, sir. हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था सर, क्या हम स्टेट और सेंट्रल दोनों की सब्सिडी ले सकते हैं बायोमास पैलेट में? सर ये इसके लिए हमने पीछे 2 हफ्ते पहले वेबिनार किया है, वो एमएनआरई के साथ। आप ले सकते हैं। आप उसका वो कुछ टाइम बाद यूट्यूब पे लिंक अपलोड हो जाएगा, तो मैं उसका अभी मेल में उसका भी लिंक डलवा दूंगा, जिनको सब्सिडीज के बारे में, सीबीजी और पैलेट दोनों इंडस्ट्री के लिए, ताकि आप उसके बारे में वो है। बट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीआईसी as far as पैलेट is concerned। हमारे यहाँ डीआईसी में सब्सिडी है और एमएनआरई दोनों में ले सकते हैं अपन। हाँ जी सर, बिल्कुल ले सकते हैं आप। बाकी मैं वो लिंक डलवा दूंगा। कर्नल रोहित देव हैज कंडक्टेड दैट वेबिनार विद एमएनआरई, सो आप उसको मैं लिंक को फॉलो करेंगे तो वो यूट्यूब पे अपलोड होते ही आपको, आप उसमें, इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव वेबिनार। नाउ आई प्लीज सेंड लिंक इन समर्थ मिशन ग्रुप। श्योर सर, विल डू इट सर। आयुष जी, व्हाट्स द क्वेश्चन सर? सर एक क्वेश्चन था, क्वेरी था मेरा। भागीरथ जी अभी, हाँ जी बोलिए सर। सुरेश जी। हाँ सर, एक था, सर मेरा प्लांट 2 साल से रनिंग में था, और उसमें जो एसेट्स का जो डेप्रिसिएशन है उसमें लॉस में चला था। ओनली एसेट डेप्रिसिएशन लॉस किया था। मैंने एसबीआई में लोन अप्लाई किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया सर देने के लिए। प्लांट इंक्रीज के लिए मैंने अप्लाई किया था। नहीं, हेलो। हेलो। हाँ सुरेश जी। जी सर। नहीं, आपने पहले ये बताइए कौन सा प्लांट की बात कर रहे हैं आप, किसका प्लांट लगाया था और क्या कॉस्ट? सर मेरे पास ब्रैकेट और पैलेट प्लांट है, ठीक है। 2 साल से रनिंग में है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना था? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट करीब, जो मैं इंक्रीमेंट के लिए लिया था, मैंने 1 करोड़ का अप्लाई किया था, 50 का सीसी के लिए किया था। और मेरा 2 साल का टर्नओवर फर्स्ट ईयर था 70 लाख रहा, सेकेंड ईयर 1.5 CR रहा। लेकिन वो डेप्रिसिएशन एसेट्स में वो लॉस में बताया 1-2%। ठीक है सर, एसेट डेप्रिसिएशन में ओवरऑल बाकी प्रॉफिट में था, फिर भी मेरे को लोन के लिए मना कर दिया गया सर। नहीं, देखिए 2 तरह का डेप्रिसिएशन होता है, एक तो होता है कंपनीज एक्ट और एक होता है इनकम टैक्स एक्ट। तो आप जो बात कर रहे हैं कंपनी टैक्स जो होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई 100 रुपए की चीज है और 10% डेप्रिसिएशन है, तो यानी 10 रुपए आप जो है 10 साल तक करेंगे। और एक होता है एक्सेलरेटेड इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन जो है, वो होता है एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन। तो नॉर्मली क्या होता है, इनकम टैक्स जब कैलकुलेट होता है तो वो एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन लग जाता है। लेकिन जो बैंक अगर लोन देगा, वो बैंक लोन, एक होती है चीज कैश एक्रूवल, हमेशा प्रॉफिट में आपका डेप्रिसिएशन ऐड हो जाता है। मतलब जब आपका लोन देखता है कोई भी बैंक, तो ये देखता है वो अपना डेप्रिसिएशन को लेता नहीं कि एक्चुअल में डेप्रिसिएशन जो है वो दैट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। वो सिर्फ हम मानते हैं कि आपका डेप्रिसिएशन हो रहा है मशीनों का, लेकिन एक्चुअल में आपका जो प्लांट से, आपके प्रोजेक्ट से, आपके घर से कोई पैसा नहीं जाता। जी। तो उसको कंसीडर नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, तभी तो मैं उसका लिए मैंने प्लांट इंक्रीमेंट के लिए लगाया था एप्लीकेशन, लेकिन वो मना कर दिया गया। तो आप उनको ये बोलिए कि आप डेप्रिसिएशन है वो तो कंसीडर होता नहीं है, आप कैश एक्रूवल देके, अगर कैश एक्रूवल आपके प्लान में आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू बिकम एलिजिबल फॉर वर्किंग कैपिटल एज वेल एज टर्म। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर।
आई थिंक सर एक क्वेश्चन आया था चैट पे कि एआईएफ और सीपीसीबी का तो कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं है, दे कैन अवेल बोथ द सब्सिडीज। दे कैन अवेल बोथ द सब्सिडीज। या लेकिन ठीक है सबसे बड़ा जो लेकिन इसमें जी सर। दिक्कत क्या आ जाती है कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो सब्सिडी है दैट इज पराली बेस्ड, यस सर। क्योंकि वो जब बनाई गई थी वो पराली के लिए, लेकिन ज्यादातर प्लांट क्योंकि और क्या है कि स्ट्रेटेजिकली आप प्लांट लोकेट करेंगे अगर, तो आप जहाँ पराली वाली जगह में जाएंगे तो वहां पे आपको मस्टर्ड स्ट्रॉ नहीं मिलेगा, सरसों की तुड़ी नहीं मिलेगी, और सरसों की तुड़ी में जाएंगे तो आपको मस्टर्ड नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं है, जब आप प्लांट खुद ही लगाएंगे तो आप ये पाएंगे कि आप दोनों में से किसी एक को ही ले पाएंगे। हाँ सर, सी एमएनआरई वाली एआईएफ तो अलग है सर, एआईएफ के साथ भी उसका कोई क्रॉस है? नहीं, एआईएफ जो है, एआईएफ के अंडर में आप दोनों ये जो अगर एसएमई वाला आप लेना चाहते हैं तो दोनों वो स्कीमें एलिजिबल हो जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी, AIF एमएनआरई की भी और सीपीसीबी की भी। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों हाँ जी, सब्सिडी एज इट इज रहती है। ठीक है सर। एक मैं लास्ट 2 क्वेश्चंस लूंगा। एक सर आयुष जी, एक क्वेश्चन। आयुष यस सर, हेलो गुड इवनिंग सर, सर। प्लीज सर मैं जिनका नाम ले रहा हूँ उनका वो है आयुष जी, आप क्वेश्चन पूछिए। गुड इवनिंग सर। हम लोग ने बैंक को अप्रोच किया था एंड बैंक ने पैलेट के लिए एआईएफ में 2 CR उन्होंने रेडी हो गए थे वो लोग सर, बट द प्रॉब्लम इज दे आर आस्किंग फॉर 30% प्रमोटर्स मार्जिन। 30%? यस सर। तो एआईएफ में तो 10% है, और अगर 10% है 2 करोड़ के लिए, और अगर उतना नहीं है अगर, तो फिर 25% है, 30% नहीं है। नहीं तो सर जैसे अभी आप ही ने बताया कि अगर अपने 2 CR तक से अपने लोन ले रहे हैं तो हमारा प्रमोटर्स मार्जिन शुड बी नियर अबाउट 10%। बिल्कुल बिल्कुल, उस समय तो आपके लिए 2 तो करोड़, क्योंकि अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ही अगर मान लीजिए 2 करोड़ है अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। नहीं सर, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट तो 4 CR है, बट अच्छा, बट हम लोग सर बैंक से सिर्फ 2 CR स्कीम के तहत ले रहे हैं, तो सर वो लोग मार्जिन वी आर आस्किंग फॉर मिनिमम 30% सर। अच्छा नहीं, 30% तो किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, 25% होना चाहिए। लेकिन आपका Sir, I आइडिया also had the same experience. This is happening on like every time we approach, they charge for at least 30% margin. ओके, तो मतलब 2 करोड़ तक आपका ये क्वेश्चन है कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बेशक ज्यादा हो, लेकिन अगर हम 2 करोड़ तक की सिर्फ लेना चाहें तो हमारा जो मार्जिन का जो बेनिफिट है 10% का, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर राइट। तो ये चीज थोड़ा देखना पड़ेगा, बिकॉज एआईएफ एग्रीकल्चर सेगमेंट हो जाता है, इवेंचुअली आई एम फ्रॉम द एसएमई सेगमेंट, तो मैं को ये चीज थोड़ा क्लैरिफाई करना पड़ेगा। आई विल रिवर्ट बैक टू यू। ओके सर। आशीष त्रिपाठी जी, हेलो सर, हमारा एग्री इंफ्रा फंड में लोन है। हेलो, हाँ बोलिए, मैं सुन पा रहा हूँ। हमारा 3 करोड़ का लोन था, उसमें अब हम 2 करोड़ के अंदर चले गए हैं। तो हमारी सिक्योरिटी एक प्राइमरी है और कोलेट्रल भी लिया हुआ है, तो क्या ये कोलेट्रल रिलीज हो सकता है क्या? कोलेट्रल, हाँ आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपने जैसे लोन 3 करोड़ ले रखा है, और इनका क्या होता है, बैंक कभी भी, बैंक का एक रेशो होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने टोटल कोलेट्रल सिक्योरिटी और प्राइमरी सिक्योरिटी, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया 100 रुपए का पेन और 20 रुपए की पेंसिल का, तो बैंक ये देखता है कि भाई टोटल अगर मान लीजिए 100 रुपए का लोन है तो उसके पास में 120 रुपया है असेट का। अब अगर मान लीजिए लोन घट के जो आप दे रखा है 100 रुपए से का अगर कम हो गया, तो ऑब्वियसली उनको तो वो चीज जरूरत नहीं है, तो आप एक रिक्वेस्ट लेटर डाल सकते हैं कि भाई मेरा जो कवरेज जो है, लोन मेरा क्योंकि कम हो गया, तो मेरी जो सिक्योरिटी है जो एक्स्ट्रा ले रखी है वो रिलीज कर दी जाए। यू हैव अ राइट। मैंने रिक्वेस्ट किया था, एसबीआई में ही हमारा लोन है, लेकिन वो कंसिडर नहीं कर रहे उस चीज के लिए। मेरा 3 करोड़ का था, अभी 3 साल में मेरा 1.75 बचा हुआ है लोन, एग्री इंफ्रा में ही है लोन, तो वो सीजीटीएमएस में भी कन्वर्ट नहीं कर पा रहे उसको, और रिलीज भी नहीं कर रहे प्रॉपर्टी। नहीं, आप इस लॉजिक को लेके आप ब्रांच मैनेजर को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं। Sir, I'm back. If you allow me to ask a question. Yeah, please, Ashish, go ahead. Sir, just this one, I'm not going to blow my horn, but just 30 seconds, if you can allow me. So we are the only Indian company which has completely indigenized the CBG technology, and we have projects on MSW, Napier, paddy straw based on
our own patented technology, and we have invested in our own CBG plant. But I have a lot of clients that are struggling, and I've raised this issue in UP-NEDA also to the IS officer who was there last time, that why can't we have A category and B category kind of EPC contractors whose projects have been vetted by some kind of either Swarna Singh Institute or someone else. Once the clients are taking their technology and backed by certain other vetting, some consideration on collateral leeway, some consideration on lesser collateral for such clients, can it be done? Because, or if it is possible, I can sit with you to discuss more on this. But if something has to be come out, because this 30% margin money blanket is not going to support, especially when you look at there are certain other funding agencies like IREDA which have other considerations, while banks have some other considerations. So this is creating a non-level playing field, and I would be very happy to interact with you to find a solution. But can some kind of a discussion happen in this regard, either through IFG to MNRE or even to banks, within the banks? Can something like this can be done? Because this industry is really struggling because of the non-serious players. Absolutely, your concern is very valid. But sometimes what happens, even though the things are decided in the policy level itself or the top management side, because you will be surprised, because earlier when we were financing CBG project in 2020-21, we were not asking for any collateral security. But all of a sudden, because they also see the risk perception, how many projects are coming, so they are also bound by that. Even though we have escalated this issue, because there are many players in the market, and as you are telling, means you are a EPC company. So I also feel, because earlier when there was only core group of some 12 or 13% of the ministry itself, by that time itself means I am linked with CBG projects. So during that time also there were hardly 2 or 3 suppliers, and we were doubtful regarding the technology. We even talked with Professor Vijay Kumar, who is said to be the father of CBG in India. He is sitting in IIT Delhi also. So likewise, what you are telling means if you are also claiming that yes, you are able to generate the CBG, then there has to be some type of, say, agency like maybe a TERI or something, because they are also providing this technological know-how or something like that. If they can approve the things, then also the banks will also be comfortable that this particular technology is going to work. So I would just, sorry to interrupt, I'll just propose that through IFG, I would like to work with you to identify certain mechanisms, and you guys are also welcome to visit our own plants where we have 100% indigenized without outsourcing even a single thing, completely made inside our own plant. And I'm already in discussions with Professor Vijay Rao, Professor Bhaskar Rao, Professor Shanmugam, and all the other IITs also. Ashish ji, are you a member of IFG? As of now, no. I mean, please share your number on the chat with me, and we'll be in touch with this, and we'll take this thing forward. I think we have already sufficient time has been given for the question and answer session. I think we should thank Ravi ji for his contribution for the knowledge enhancement of all the stakeholders, and patiently listening Sir, to all I the have a questions question. and answering. If you could take one last question. Hello, Sir, I think already time is we have taken. Sir, it आपको जो भी is question है, about sir, the मैं- new credit guarantee scheme launched in January. The Ministry of Finance has launched a scheme called Mutual Credit Guarantee Scheme for 100 crore coverage for plant and machinery and equipment eligible under coverage guarantee for machinery and equipment. So is it also covered for CBG plants? Because CGTMSE covers only for 10 crores. This scheme covers till 100 crores and loan up to 50 crores. So is this scheme also means for CBG plants? Yes, NCGTC scheme is there, but many very few people are, I think almost negligible people are coming in this or adopting this scheme, because in this particular scheme there is an initial investment of 5%. So suppose if somebody is want to have a coverage of say 100 crores, he need to put a money of 5 crores into this corpus, and this particular corpus that will remain with the fund, and he's not going to utilize that for a longer period, means subsequently. So that's why not more people are going and adopting for this scheme. I think sir, okay, thank sir. you. हेलो Thank सर, you. मेरा क्वेश्चन था। नहीं सर, अभी कोई क्वेश्चन नॉट अभी नहीं कर पाएंगे। आपका जो भी क्वेश्चन है आप हमारी मेल पे रिप्लाई कीजिएगा। आई विल टेक अप विद रवि जी एंड आई विल शेयर हिज डिटेल्स विद यू। यू कैन राइट टू हिम और कॉन्टैक्ट हिम पर्सनली। रवि सर, थैंक्स अ लॉट।
I think lot many questions were answered. I think lot many queries और the timing we cannot take all the questions because इतने questions हैं कि उसके लिए पूरा दिन भी शायद कम पड़ जाएगा related to finance. Now actually I will request Colonel Rohit Dev, Deputy Director General IFG, to kindly share his concluding remarks and give a brief about the IBIT Expo, which is we are organizing in September, to the audience. Welcome you, sir. ठीक है, धन्यवाद रवि जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी विनम्रता से और काफ़ी सहनशीलता से फाइनेंस के क्वेश्चन टैकल किए हैं, बिकॉज ये एक बड़ा ही बैक बेयर है जो कि मिड स्ट्रीम में काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका है, बट मेरा मानना है कि अपस्ट्रीम जो इस पूरे 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 प्रोसेस का है, जो बायोमास एग्रीगेशन से रिलेटेड है, जहाँ पर फार्मर्स इन्वॉल्व हैं, जहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उनकी फंडिंग भी जरूरत है। तो जब हम बैठे थे अभी लास्ट एमएनआरई की जो स्कीम रिवीजन में, उसमें भी ये पॉइंट सामने आए उस कमेटी में, जिसमें राजनाथ राम जी थे नीति आयोग से भी। तो आई थिंक इसका पूरा जो एक सामूहिक रूप से जो रिकमेंडेशंस हैं, वो मैं समझता हूँ कि आईएफजी को आपके साथ भी शेयर करने चाहिए एज अ बैंकिंग सिस्टम, एज अ मेन बैंक ऑफ इंडिया। And I think, Aman, you need to share this with some private banks and also IREDA and other government-led institutions like REC and others as well. The recommendation which came from that scheme as well are very important for the synergy to develop. दूसरा, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने अपना समय निकाला आज, एंड क्योंकि ये आप ही की मांग थी। मेरे को याद है आज से 3-4 महीने पहले, आई थिंक जनवरी की जब वार्ता हुई थी, तो उसमें मैंने आपसे पूछा था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप बायोमास रिलेटेड करना चाहते हैं। तो उसमें 4 टॉपिक्स आए थे, और वो 4 टॉपिक आज इसके साथ समाप्त होते हैं, जिनकी पहली डिस्कशन हो चुकी है थ्रू आईएफजी का जो बीजे वार्ता है। तो आई थिंक आपने काफ़ी कुछ नॉलेज गेन किया होगा। काफ़ी सवाल आपके होंगे जो आपके खुद के प्लांट से रिलेटेड होंगे। मैं समझता हूँ कि आप यहाँ डालना चाहे तो चैट बॉक्स में डाल दें, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो मेरे ख्याल से सारे मैसेजेस स्टोर हो जाते हैं। अगर नहीं तो जिस ईमेल से आपने रजिस्ट्रेशन किया था, आप उस पर अपने डाल दें इनपुट। और एक तरीका और है, क्योंकि जब हमने आपको गूगल डॉक्स दिया होगा ये प्रोग्राम पे आने के लिए, तो वो हमने क्लोज नहीं किया होगा। आप उस पर जाएं, जहाँ पे सुझाव का कॉलम या कमेंट्स का कॉलम आता है, वहाँ आप अपने आप सुझाव कमेंट भी लिखें, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी आप लिखें। तो हम क्या करेंगे, आज से 4-5 दिन बाद मंडे ट्यूसडे को वो दोबारा आपकी जो एक्सेल शीट खुलेगी पूरे रिस्पॉन्स की, हम उससे जो बाकी प्रश्न निकलते हैं वो लेके रवि जी को देंगे। और उसके बाद जब भी उनकी तरफ से उसके आंसर आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर एफएक्यू फॉर्मेट में, तो वो पूरा का पूरा एफएक्यू हम आपके साथ भी शेयर करेंगे, और आईएफजी के वेबसाइट पे भी उस एफएक्यू को हम डाल देंगे कि जो फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज होती हैं, अमन, दे कैन बी लाइक अ एफएक्यू। सो फॉर एवरीथिंग विच वी हैव इन टर्म्स ऑफ बीजीएफ, जस्ट वन टैप फॉर एफएक्यू विल ईज अ लॉट ऑफ पेन। जो ये यूट्यूब हुआ है, ये आप वर्ल्ड वाइड में डाल दीजिए, पीपल कैन सी इट, अनामिका, एंड गेन फ्रॉम दिस। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आईएफजी का एक फ्लैगशिप इवेंट होता है, इसमें 3 ट्रैक्स हैं इस साल, 24 से 26 सितंबर को चलेगा वो। और उसमें मैं पहले फाइनेंस की बात कर लेता हूँ। फाइनेंस के 2 बहुमूल्य ट्रैक रखें। आमतौर पे ओनली फाइनेंस के ट्रैक्स नहीं रखते हैं इवेंट्स पे, बट हमने 25-26 तारीख को, मेरे ख्याल से ये दोनों के दोनों 26 तारीख को ही होंगे, तो हमने ये फाइनेंस के ट्रैक्स रखे हैं, जिसमें कि इंडियन एंड नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड छोटे इंस्टीट्यूशन सिडबी वगैरह उसमें होंगे, और एक जिसमें एसबीआई और एसबीआई के ऊपर एसबीआई शायद दोनों में होंगे, बट जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी में पैसों का इन्फ्यूजन कर रहे हैं इंडिया में, हम ये 2 तरह से करेंगे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि अगर आप इस इवेंट पे आएंगे तो आपको फाइनेंस का एक जो डोमेस्टिक सेक्टर का फाइनेंस है उसका काफ़ी आपको एक इंटरैक्टिव वो मिलेगा इनपुट। दूसरा है, इसी पूरे के अंदर एक सीबीजी का पूरा ट्रैक है, जिसके अंदर के 3 राउंड टेबल और 6 टॉपिक्स कवर होंगे। फिर बायो एनर्जी की जो ट्रैक है उसके अंदर हम बात करेंगे बॉयलर्स के ऊपर, हम बात करेंगे डेंसिफिकेशन, ब्रिकेटिंग, पैलेटिंग, टॉरिफिकेशन के ऊपर, हम बात करेंगे बायोमास सप्लाई चेन के ऊपर, हम बात करेंगे बायोचार और बाकी डेरिवेटिव्स के ऊपर भी। तो ये सारे सेशंस इंडिविजुअल सेशंस है 1.5 घंटे के, जिसमें आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी फ्रॉम द एक्सपर्ट्स विल बी देयर। स्केलिंग के ऊपर सेशन है, बायो मोबिलिटी के ऊपर सेशन है, एथेनॉल, एलएनजी, एसएफ के ऊपर सेशन है। तो ऐसे करके सेशन है, बट वो जो बड़े बायो के सेशन है वो आपसे ताल्लुकात नहीं रखते होंगे, बट सप्लाई चेन से लेके सीबीजी सेक्टर, सप्लाई चेन से लेके डेंसिफिकेशन और बॉयलर, ये काफ़ी हद तक कवर किया जाएगा। और हमारी ये एक मुहिम है कि हम आपको सिखाएं यहाँ पर एक वर्कशॉप के जरिए। 2 प्रमुख वर्कशॉप चलेंगे इस साल। एक है हाउ टू सेटअप अ सीबीजी प्लांट,
और एक है हाउ टू सेटअप अ डेंसिफिकेशन प्लांट। तो मैं समझता हूँ कि आप में से जितने भी लोग हैं जो इसमें जुड़ना चाहते हैं इस मुहिम में हमारे देश की, आप जुड़ सकते हैं। अगर आप अपने कोलीग्स को या साथियों को लाना चाहते हैं आप ला सकते हैं। एंड जो आप में से जो कंपनियां हैं जो कुछ पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज बना रही हैं, या आप ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, ओईएम हैं किसी चीज़ के, या आप आर&डी वाले हैं, तो आप अपना एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी स्पेस है, कोई कमी नहीं है, क्योंकि अभी हमने तकरीबन एक क्वार्टर लिया था एग्जीबिशन हॉल का, अब हमने उसको पूरा हाफ ले लिया है। तो जैसे जैसे आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं। आपको जितनी स्पेस चाहिए, आपको अपना ट्रैक्टर, ट्रॉली, मशीन, बॉयलर कुछ भी लगाना है एज अ आइटम आप लगा सकते हैं। स्पेस की कोई कमी नहीं है। इवेंट यशोभूमि में है, तो कोई संकोच ना करें आपको जो भी कुछ करना है इसमें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, आप आईबेट का एक साइट है, अनामिका, यू कैन जस्ट टाइप इट राइट नाउ, ibetexpo.in या कॉम जो भी है, टाइप कर दीजिए। ये मिस्टर उल्लास पाटिल को म्यूट कर दीजिए। और उसके बाद जो आपका ये IFG का साइट है वो, और जो मेंबरशिप फॉर्म है वो यहाँ भी डाल दीजिए। और बाद में कलेक्टिवली जो ये 200-250 आज रजिस्टर हुए हैं, कुछ कॉमन रहेंगे, लास्ट टाइम 300 कुछ रजिस्टर हुए थे, तो इसमें देख लीजिए कि 300 का 400 जो भी अभी स्ट्रेंथ बनती है लास्ट 3-4 वार्ता की, तो इन 400-500 लोगों को आप एक कॉमन ईमेल पे ये सारा इनपुट्स भेज दीजिए हमारी तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि ये जो छोटी सी मुहिम है, कुछ हाथ अभी भी खड़े हैं, तो आप मायूस ना हो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं हमारे तरफ। और एनी विच केस हम एक और ऐसा वार्ता करेंगे अपने सितंबर की शायद मीटिंग के बाद, जो कि कलेक्टिव टाइप की बीजे वार्ता होगी। हम उसको तकरीबन 3 घंटे के लिए रखेंगे। पहले कुछ 40-1 मिनट में हम आपको जो हमारे डिलिब्रेशन हुई हैं इस IFG के इवेंट में, अगर आप वहां नहीं आ पाए तो उसके में क्या हुआ आपको उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। कुछ आपके इनपुट्स जो आए हैं वो शेयर करेंगे, और उसके बाद हम एक Q&A कर सकते हैं। और उस पर्टिकुलर बीजे वार्ता में हम हर एक वैल्यू चेन के एलिमेंट इंक्लूडिंग फाइनेंस, कार्बन क्रेडिट इंक्लूडेड लोगों को भी लाएंगे, जो आपके क्वेश्चन के आंसर भी कर सके। तो ये थोड़ी दूर की बात है, अभी ये शायद अक्टूबर-नवंबर के बाद ही होगी। मुझे लगता है कि नवंबर से पहले होगी ये, बट सितंबर का आप इवेंट ध्यान रखें। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ें। जो मेंबर नहीं है वो अपने हिसाब से मेंबर बन सकते हैं, जैसा कि बताया अमन जी ने। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप मेंबर बने, क्योंकि अगर आप पॉलिसी एडवोकेसी में आना चाहते हैं सरकार के साथ, तो सबसे अच्छी जो संस्था है जो बायो एनर्जी में अभी है वो इंडियन फेडरेशन फॉर ग्रीन एनर्जी है। एंड पेट्रन इन चीफ भी हमारे गडकरी जी हैं, पहले सुरेश प्रभु जी ने उसको शुरू किया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पॉलिसी एडवोकेसी में ये संस्था काम आती है। और हम तभी इंटरेक्ट करते हैं स्टेक होल्डर से, क्योंकि हम दिल्ली में बैठ के अपने व्यूज़ नहीं देना चाहते। हम आपके व्यूज़ को कोलेट करके, एनालाइज करके, और जो देश के लॉन्ग टर्म हित में है, एनर्जी सिक्योरिटी में, एनर्जी ट्रांजिशन में, नेट जीरो में, हम उसको अपने सरकार के और डिपार्टमेंट के समक्ष रखते हैं। हम काफ़ी वेबिनार्स करते हैं, काफ़ी इंटरेक्शंस करते हैं, और आप देखेंगे कि अगले साल से जनवरी से जो स्पीड है वो बढ़ेगी हर महीने कोई एक्टिविटी करने की। और हम रीजनल चैप्टर्स भी बना रहे हैं। तो रीजनल चैप्टर्स जब बन जाएंगे तो कम से कम जो रीच है वो दुगना हो जाएगी अगले साल तक। तो मैं समझता हूँ कि मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। अभी 4:15 का टाइम था, 8 मिनट ऊपर हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ, थैंक यू अमन फॉर अ वेरी वेल कंडक्टेड इवेंट। थैंक यू रवि जी, आपने अपना समय निकाला, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्टेट बैंक से मैं काफ़ी ताल्लुकात रखता हूँ। एक चीज़ खाली बोलना चाहूँगा, काफ़ी लोग यहाँ पर हैं जिनका मैंने सुना और मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में भी, कि अप्रोचेबिलिटी जो एक फैक्टर है किसी बैंकिंग सिस्टम में, वो कभी कभी लोगों को लगता है, खासतौर पे सेमी अर्बन रूरल एरिया में, कि वो बैंक से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने ये खुद, जब मैं जाता हूँ फील्ड में, और मैं पिछले 8 साल से सप्लाई चेन में काफ़ी लगा हुआ हूँ, तो जो एक लेवल है, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा सबको कि कॉमन बैंक नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट मैं कहता हूँ जो जोनल बैंक्स होते हैं, अगर आप वहाँ जाके उनके DGM से मिलेंगे तो आपको सारे स्कीम्स की नॉलेज वो DGM वहाँ पे आपको आराम से चाय भी पिलाएंगे और आपको बताएंगे भी। बट अगर आपको लगता है अप्रोचेबिलिटी नहीं हो रही है आपकी, कोई कोई ऐसा बैंक है जहाँ पे आप नहीं कर पा रहे, तो आप IFG को लिखिए, आप कहाँ रहते हैं। हम क्या करेंगे, हम उसको फिर एक कलेक्शन करके हम उधर के फिर DGM AGM को एक ईमेल में डालेंगे। आपके नाम, नंबर, ईमेल, फ़ोन नंबर डाल सकते हैं हम अपनी तरफ से, कि आप इनके साथ